کیبنٹ آور میں تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، صحت انصاف کارڈ کے نظام کی مزید بہتری کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اقدام۔ صحت انصاف کارڈ سے متعلق شہریوں کے مسائل پاکستان سٹیزن پورٹل سے منسلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سٹیزن پورٹل پر صحت انصاف کارڈ کے نام سے خصوصی کیٹیگری بھی الاٹ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم ڈلیوری یونٹ نے ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ جن کے مطابق اسلام آباد میں ہسپتالوں میں علاج سے انکار، سہولیات کے فقدان، عملے کے رویے سے متعلق براہ راست شکایات کی جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ علاج پر آئے اخراجات کی عدم معلومات، علاج میں تاخیر اور غلط علاج پر بھی شہری شکایت کر سکیں گے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ صحت انصاف کارڈ کے پینل میں شامل ہسپتالوں کے مسائل پر بھی شکایات درج کروائی جا سکیں گی۔ شکایت کے فوری ازالے کے لیے اسٹیٹ لائف کے اعلیٰ افسران کو خصوصی ڈیش بورڈ بھی الاٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق چیئرمین اسٹیٹ لائف شہریوں کی شکایت کے فوری حل کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہو اور جامع سیاسی حل کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ اسلام آباد میں برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن، محفوظ اور مستحکم افغانستان پاکستان اور علاقائی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کی بہتری اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں افغانستان میں معیشت کے استحکام اور انسانی بحران سے بچنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ افغانستان کے اندر اور باہر موجود دشمن عناصر صورتحال کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بزرگ کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کے جسد خاکی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا اور اسے لواحقین سے چھینا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے ریڈ لسٹ میں پاکستان کی موجودگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے دوہری شہریت رکھنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کچھ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ طالبان کے بانی رہنما ملا عبدالغنی برادر نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے، جس کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ملا یعقوب اور شیر محمد عباس تانکزئی حکومت میں اہم عہدے سنبھالیں گے۔ تمام بڑے رہنما کابل پہنچ گئے ہیں، جہاں نئی حکومت کا اعلان کی حتمی تیاریاں جاری ہیں۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ مذہبی امور اور اسلامی حکومت سے متعلقہ امور پر توجہ دیں گے۔ طالبان کے بانی رہنما ملا عبدالغنی برادر نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے، جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ رائٹرز نے اس حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملا یعقوب اور شیر محمد عباس تانکزئی حکومت میں اہم عہدے سنبھالیں گے۔ تمام بڑے رہنما کابل پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کابل پہنچ رہے ہیں، جہاں نئی حکومت کے اعلان کی حتمی تیاریاں جاری ہیں۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ مذہبی امور اور اسلامی حکومت سے متعلق امور پر توجہ دیں گے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، وہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ طالبان کے بانی رہنما ملا عبدالغنی برادر نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ اس حوالے سے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملا یعقوب اور شیر محمد عباس تانکزئی حکومت میں اہم عہدے سنبھالیں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی پی ٹی وی نیوز رشید صافی صاحب۔ رشید صافی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رشید صافی صاحب، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ بتائیے گا کہ نئی حکومت کی تشکیل کا مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ رشید صافی صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں افغانستان میں، تمام نظریں افغانستان کی نارے مرکوز ہیں، جہاں پر نئی حکومت کے اعلان کے حوالے سے اعلان کی تیاریاں تو جاری ہیں۔ نئی حکومت سازی کے حوالے سے کس طرح کی حکومت ہوگی، کون کون سی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی اور سٹرکچر کیا ہوگا، ڈھانچہ کیا ہوگا حکومت کا، اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اور اعلان کیا جائے گا طالبان کی جانب سے حکومت کا۔ ملا عبدالغنی برادر اس حکومت کے سربراہ ہوں گے، یہ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے، ہم آپ کو آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملا یعقوب اور شیر محمد عباس تانکزئی کو اہم ذمہ داریاں ملنے کی امید ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ اسلامی امور کی
हवाले से इन अमूर पर तवज्जो भी देंगे, जबकि मजहबी अमूर और इस्लामी हुकूमत से मुतालिक अमूर उनकी ज़ेर निगरानी होंगे। इसी पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है, तालिबान ने 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया। काबुल में जो वाक़यात पेश आए उसके बाद आम माफ़ी का ऐलान किया गया और वहाँ से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद जो सूरत हाल है उसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आलमी बरादरी से भी बारहा अपील की गई कि वो भी इसमें अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, वहाँ से गैर मुल्की सफारतकारों को, जो दूसरे इदारों के अफराद थे, उनको हमने पाकिस्तान ने इनखला के लिए पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज फ्राहम की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान दफ्तर खारजा, वजारत खारजा, इसी पर बात करेंगे। रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया एक मरतबा फिर। रशीद साफ़ी साहब, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, जानना ये चाह रहे हैं कि क्या हुकूमत कब तक मुतवक्के है, कहाँ तक पहुँचा है ये मामला हुकूमत साजी का? जी, मैं जिस तरह बता रहा था कि सुबह ही बात हुई थी तालिबान के तर्जुमान से, तो उनका यही कहना था कि हुकूमत साजी का मरहला आखिरी मराहिल जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इस हवाले से गैर मुल्की वफूद भी काबुल पहुंच चुके हैं और जो उनके मुशावरती अमल है, तालिबान का कहना था कि वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो एक नई हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो ताखीर की खबरें पहले आ रही थी, तो उस हवाले से जो खुसूसी तौर पर मेरी बात की थी तर्जुमान तालिबान से, तो उनका कहना था कि पहले भी हमने कोई तारीख खत्मी नहीं दी थी। मीडिया ने अपने तौर पे तारीखें दे रखी थी जो पूरी नहीं हो सकी है और वो खबरें साबित नहीं हो सकी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि कब तक हुकूमत साजी का अमल कंप्लीट होगा, तो उनका फिर यही कहना था कि ये आला क़यादत ही बता सकेंगी और इस वक्त हम खत्मी तारीख देने के लिए की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि बहुत जल्द हुकूमत साजी का अमल कंप्लीट हो जाएगा। रशीद साफ़ी साहब, बताइएगा कि पंजशेर की क्या सूरत हाल है, वहाँ से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, क्या तालिबान का कंट्रोल हो चुका है वहाँ पे? जी, पंजशेर से आने वाली इतलात के मुताबिक तालिबान को इस वक्त अपने मुखालिफिन पर सबकत हासिल है और 2 से 3 जो अहम अजला है, अनाबा उसमें शामिल है। आज ही दोपहर को तालिबान दावा कर रहे हैं कि उस पर उनका कब्जा हो गया है, लेकिन ताहाल पंजशेर के जो सदर मुकाम है बाजारक में शदीद लड़ाई जारी है और पंजशेर की जो मुकम्मल सुकूत या तालिबान के कब्जे की खबरें हैं, अभी तक तालिबान उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। आलमी मीडिया में खबरें चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया भी बता रहे हैं हमें कि तालिबान ने पंजशेर पे कब्जा मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अभी तालिबान क़यादत से थोड़ी देर पहले ही हमारी तर्जमान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें हम इस पोजीशन में नहीं है कि बता सके कि पंजशेर का मुकम्मल कब्जा तालिबान के हाथ आ चुका है, लेकिन वो पूरी उम्मीद थे, बल्कि वो ये दावा कर रहे थे कि अनकरीब पंजशेर में जो मुतखारिब ग्रुप उनके सामने आए थे, जो शुमाली इतिहाद के जो लोग थे, वो पसपाई इख्तियार कर रहे हैं और तालिबान अपनी गिरफ्त अमन अमान पे मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, हमने देखा कि तालिबान की जानिब से चीन की एक पट्टी एक सड़क मंसूबे को कदर की निगाह के से देखने के हवाले से बयान आया है। यह बयान खित्ते की तरक्की पर किस हद तक मुस्बत असर डालेगा? जी, चीन के हवाले से बहुत ही इस बयान के बहुत ही असरात आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई जो खारजा उमूर को, सियासी उमूर को तालिबान के लिए देख रहे हैं, उन्होंने जब कौम से अपनी पहली खिताब में भी चीन को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया था और अब कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सीपैक के हवाले से जो बात की, वन बेल्ट वन रोड के हवाले से जो बातें हुई है, तो मेरे ख्याल में ये सतही बातें नहीं है। तालिबान क़यादत को बताया गया है, उनसे मशावरत शायद की गई है कि सीपैक और वन बेल्ट वन रोड के जो मंसूबे हैं मुस्तकबिल में शायद तालिबान को या अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो इंतहाई बड़ी पेशरफ्त है और अगर तालिबान पहले मरहले में अमन कायम करने में कामयाब हुए और फिर एक काबिल कबूल हुकूमत दुनिया को देने में कामयाब रहे, तो यकीनी तौर पर चीन के साथ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ में भी उनका इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान की गुर्बत और उनकी जो बदअमनी है उसमें कमी आएगी, बल्कि इनके पड़ोसी ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन ममालिक में भी तिजारती सरगर्मियाँ उनको दवा मिलेगा। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, आपने हमें आगाह किया अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तालिबान ने कहा है कि चीन उनका अहम शराकतदार होगा और अफगानिस्तान की तामीर नौ में मदद करेगा।
तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान चीन की एक पट्टी एक शाहराह एक सड़क मंसूबे को कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इस मंसूबे से कदीम शराय रेशम बहाल होगी। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान को तांबे के ज़खायर से भरपूर इस्तिफादा और मुल्क को आलमी मंडी तक रसाई हासिल करने में मदद देगा। काबुल एयरपोर्ट के बारे में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इसे शदीद नुकसान पहुंचा है, ताहम ये तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कल कतर के दौरे पर रवाना होंगे। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो दोहा में कतरी रहनुमाओं और नकल मकानी करने वाले अफगानों और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि महकमा ख़ारजा अफगानिस्तान में रह जाने वाले तमाम अमरीकियों के साथ राबिते में है जो अब भी अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका तमाम अहम मामलात और वादों की पासदारी के लिए तालिबान के साथ राबिते में रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एनसीओसी की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए नई हिदायत जारी की गई हैं, जिनके मुताबिक वो तमाम अफराद जिनकी दूसरी डोज का मुकर्रर वक्त हो चुका है वो बगैर मैसेज का इंतजार किए दूसरी डोज लगवाएं। ऐसे तमाम अफराद हफ्ते के 7 दिन मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। एनसीओसी की जानिब से इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर किया गया है। और नाज़रीन, अमरीका आइंदा 10 रोज़ के दौरान पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की 66 लाख इजाफी खुराकें फ्राहम करेगा, जिससे अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को अतिया करदा वैक्सीन की तादाद 1,58,00,000 हो जाएगी। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी एलामिया में नाज़िम उल अमूर एंजेला एगलर ने कहा कि अमरीका कोरोना वबा की चौथी लहर से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी शहरियों में उनकी फौरी तकसीम से पाकिस्तान में वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होगा और सेहत के शोबे में काम करने वालों पर वबा में कमी आएगी। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अपने दिल की हर धड़कन का है नाम पाकिस्तान। इस दुनिया में हम सब की पहचान पाकिस्तान। तुमने हिफाजत की मासूम बच्चों की मुस्कुराहट की। हम गवाह हैं, तुमने हिफाजत की आजाद फिजाओं में लहराते हुए परचम की। जब भी मुश्किल वक्त आया तुमने अर्ज़ पाक को अपनी सांसें बख्श दी। तुमने हिफाजत की पाक वतन पाकिस्तान की। हमें तुम पे नाज है, तुमने अपना खून बहाकर इस मिट्टी की लाज रखी है। तुम सरहद पर सीना तान कर खतरों के आगे सिर्फ इसलिए डट गए ताकि हम महफूज रह सकें। यौम दफा और शोदा पाकिस्तान 2021 के मौका पर आइए हम सब मिलकर अपना फर्ज अदा करें। अपने इलाके में मौजूद शोहदा के घरों में जाकर उनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करें। जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है।
कैबिनेट आवर में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। आपको बताते चलें कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिशों का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। बारिशों के बायस शहर के अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि मौसम की सूरत हाल। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज़ जारी बारिशों का सिलसिला रात गए तक जारी रहा, जिसके बायस शहर के अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मानसून की बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता चंद रोज़ में सिंध की जानिब बढ़ा और गुज़िश्ता रोज़ से कराची में ये बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कराची से ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जहाँ पर बारिशों के बाद पानी की सूरत हाल और पानी के अखराज के हवाले से इंतज़ामात नहीं किए गए। इंतज़ामिया की गैर मौजूदगी भी एक सवालिया निशान है। कराची में इंतज़ामात एक मरतबा फिर कराची मौसम के रहमो करम पर है। बारिशें हो चुकी हैं, बारिश के बाद पानी सड़कों पर मौजूद है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कई इलाकों से खबरें ये आ रही हैं कि बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिशों का सिलसिला रात गए तक जारी रहा और इन बारिशों के बायस शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिशों का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। बारिशों की वजह से शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शहर कायद में एक दफ़ा फिर गुज़िश्ता बरस की तरह शदीद बारिशों की वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जी बिल्कुल, कराची में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिशों का सिलसिला रात गए तक जारी रहा है, जिसकी वजह से बिजली की जो फराहमी थी वो भी मुअत्तल हो गई है कई इलाकों में और बारिशों के बायस शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और जो गलियां हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। गाड़ियां इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लाइव मनाजिर के, सड़कों पर भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो चुका है और गाड़ियां डूब के पानी में जा रही हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सब हमने देखा था गुज़िश्ता बरस भी शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी। अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा था शहर कायद के बासियों को और उस वक्त भी वफाकी हुकूमत की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए गए थे। शहर को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए, नदी नालों की सफाई के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस किए गए। लेकिन एक दफ़ा फिर कराची में चंद घंटों की बारिश के बाद ये मनाजिर हैं। गो कि बारिश की शिद्दत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद पेशगोई करने के बावजूद भी कराची और सिंध हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामिया है उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। एहतियाती तदाबीर के हवाले से लोगों को आगाह नहीं किया। नालों की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर ये मनाजिर हमारे नाज़रीन को देखने को मिल रहे हैं। और शहर कायद के बासियों के लिए मुश्किलात में इजाफा ये है कि बारिश हो गई और बारिश के बाद पानी सड़कों पर मौजूद है, जो कि बाद में जौहड़ बनता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं और बिजली का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया है। कराची से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिशों के बायस ये मनाजिर आप देख रहे हैं। ये बारिशों का सिलसिला चूँकि रात गए तक जारी रहा, बारिश शदीद हुई, इसके बाद शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात ने इन बारिशों के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते से पेशगोई की थी। महकमा मौसमियात का ये बताना था कि मानसून का ये स्पेल कराची, अंदरून सिंध और जो साहिली पट्टी है वहाँ पर बरसेगा, जिसके बाद बारिशें शदीद बारिशें एक्सपेक्टेड थीं और हमने देखा कि जैसे पेशगोई की गई थी वैसी बारिशें ही हुई, बरसी। और लेकिन उसके बाद जो सवालिया निशान है वो शहर कायद की इंतज़ामिया का है। शहर कायद में इंतज़ामिया गायब है, वहाँ पर इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं। पानी सड़कों पर मौजूद है, पानी की निकासी के लिए, बारिश के बाद निकासी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जहाँ पर सड़कें, गलियाँ, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों की परेशानी में इजाफा हुआ है और सूरत हाल ये है कि बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है और ज़िंदगी मुश्किल हो रही है शहर कायद के रहने वालों की। जी रिजवान, इतना ज़्यादा पानी खड़ा होने के बाद जो मलेरिया है वो कितना फैलेगा? आप ये सोचें कि मच्छर इकट्ठे हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को डेंगू का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह पानी खड़ा रहने से गंदगी, खारिश और इस तरह की बीमारियाँ जन्म लेगी और पानी का जो निकासी है वो बिल्कुल नहीं हुआ और इस वक्त इतनी ज़्यादा पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है और गाड़ियाँ जो हैं वो बीच में से पानी के जा रही हैं। बिल्कुल सबा हम बात करेंगे। सुहेल जमाली ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रिपोर्टर हैं कराची से। सुहेल जमाली, बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? बारिश की इत्तलात आ रही हैं शहर कायद से? ये देखें, मौसम तो इस वक्त बहुत खुशगवार है। अब से 2-2.5 घंटे पहले कराची के मुख्तलिफ इलाकों, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नार्थ कराची, गुलशन इकबाल, यानी कि शहर के तकरीबन 4 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना
بارش ہوئی اور مطلب ماڈریٹ بارش ہے جس کو درمیانی درجے کی کہتے ہیں. مگر صورتحال اب بھی یہ کہ کل رات سے ہونے والی بارش جیسا کہ گلشن حدید میں اور سادی ٹاؤن میں زیادہ بارش ہوئی تھی. کل 81 ملی میٹر بارش ہوئی ہے شہر کے مشرقی علاقے میں سادی ٹاؤن. اس کے علاوہ نارتھ کراچی میں تقریباً 48 ملی میٹر, گلشن حدید میں 58 ملی میٹر. اس میں سے بہت سارے علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ اب بھی شہر سے پانی نہیں نکالا جا سکا ہے. اس وقت بھی میں جو یونیورسٹی روڈ پہ ہماری ٹیم دورے پہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ بالکل نیو ٹاؤن تھانے کے ساتھ جو سڑک ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. یہی ڈی آئی جی آفس ہے سامنے, ایک مذہبی عبادت گاہ بھی ہے, اور یونیورسٹی روڈ جو کراچی کے تقریباً 1/3 ٹریفک کی ذمہ دار ہے اس پہ بدترین ٹریفک جو کل رات جام تھا اس وقت بھی جام ہونا شروع ہو گیا ہے. عمومی طور پر بلدیاتی عملہ, ٹریفک پولیس اور سندھ گورنمنٹ کی کوئی ایسی رٹ نظر نہیں آتی, نہ فعالیت نظر آتی ہے. کہ شہری جو مجبور ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں ٹریفک میں. اس میں صرف یہ ضرور ہوا اس دفعہ کہ پچھلے سال کی جو تباہی ہوئی تھی این ڈی ایم اے اور وفاقی حکومت نے جو کراچی کے 3 بڑے نالے صاف کیے تھے اس کے بعد صورتحال نسبتاً بہتر ہے کہ شہر سے پانی کی نکاسی ہوئی ہے. خصوصاً شہر کا جو جنوبی علاقہ ہے, صدر کا علاقہ ہے, شہر کا تجارتی علاقہ ہے, آئی چندری کا روڈ ہے, محمود آباد, اختر کالونی اور منظور کالونی, یہ جو پورا شہر کا جو پانی کے بہاؤ کا رستہ ہے اس حوالے سے وہاں پانی. سہیل جمالی ہمارے ساتھ موجود ہے اور کراچی میں فی الوقت بھی بارش کے حوالے سے وہ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بارش ہوئی ہے اور کراچی کے چاروں اضلاع میں صبح بارش ہو رہی ہے اور مختلف علاقوں میں, کیونکہ موسم تو خوشگوار ہو گیا لیکن جاتی ہوئی گرمی میں کراچی کا موسم اگر بارشوں نے خوشگوار کر دیا لیکن وہیں پر مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں. جیسا کہ سہیل جمالی بھی بتا رہے تھے کہ این ڈی ایم اے اور وفاقی حکومت نے 3 بڑے نالوں کی صفائی کروائی, اس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوئے جو گزشتہ برس پیدا ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی سڑکوں پر پانی موجود ہے. اسی پر مزید بات کریں گے, محکمہ موسمیات کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ محکمہ موسمیات سے موجود ہیں سردار سرفراز صاحب. بہت بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو. جی سردار سرفراز صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے کراچی کی؟ مزید بارشوں کے حوالے سے کوئی پیش گوئی ہے؟ جی دیکھیں, کراچی میں جو 2 دن سے بارش بننے والا لو پریشر کراچی کے جنوب مشرق میں موجود تھا اور کراچی ظاہر ہے اس کی پوری لپیٹ میں تھا, تو اس کی شدت کافی حد تک اب کم ہو گئی ہے. لیکن رات گئے تک یا صبح تک امکان ہے کہ کوئی 1-2 اسپیل اور ہو جائیں. ماڈریٹ بارش ہے, اب ہیوی والا جو اسپیل تھا وہ تقریباً نکل چکا ہے لیکن یہ رہے گا صبح تک. ٹھیک ہے, ابھی تو اندرون سندھ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. اندرون سندھ ساحلی پٹی کے حوالے سے جو پیش گوئی تھی کہ بارش ہوگی اور مونسون کا اسپیل, اس میں کتنی شدت کا اسپیل جو کل تک آپ بتا رہے ہیں کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے, کس حد تک کتنی شدید بارش ہو سکتی ہے؟ اس میں دیکھیے جو لوور سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں ٹھٹھا اور بدین خاص کر, تو ان میں زیادہ بارش, جیسے گزشتہ دن بھی 50 ملی میٹر سے زیادہ رپورٹ ہوئی اس میں ٹھٹھا سے, اور اسی طرح تھر پارکر میں پچھلے 2-3 دنوں میں خاصی بارش ہوئی اور بدین میں بھی ہوئی. تو بدین اور ٹھٹھا میں ہی زیادہ امکان ہے. اصل میں کراچی پہ سے تو آج رات گئے ارلی صبح تک امید ہے کہ کافی حد تک یہ سلسلہ نکل جائے گا, لیکن ٹھٹھا اور بدین میں رہے گا کل بھی, اور اسی طرح تھر پارکر اور عمر کوٹ سائڈ پہ بھی. تو وہاں پرسوں صبح تک یہ سلسلہ رہے گا وقفے سے, لیکن کوئی جیسے بہت ہیوی اسپیل تھا وہ نہیں ہوگا, اب ماڈریٹ ہوگا جنرلی. جی سردار صاحب بتائیے گا کہ اتنی زیادہ جو بارش ہونی تھی اس کے لیے محکمہ موسمیات نے کوئی ایسا الرٹ جاری کیا تھا کہ جو عوام ہے وہ پہلے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اختیار کر لے, یا نالوں کی صفائی یا کچھ اس طرح کے کوئی اقدامات اٹھائے گئے تھے کیا؟ جی دیکھیے, ہم نے یہ اسپیل 31 اگست سے شروع ہوا تھا اور اس سے 2 دن پہلے اپنی آؤٹ لک میں دے دیا تھا, اور پھر 31 کو تو باقاعدہ اسلام آباد آفس نے ہمارے ہیڈ کوارٹر نے کی تھی, ایڈوائزری ایشو کی تھی. اس میں اربن فلڈنگ کا بھی ذکر تھا, اس میں ہیوی اسپیل کا بھی ذکر تھا, اور اس میں ساری چیزیں یہ مینشن تھی ان ڈسٹرکٹس کے نام لے کر, یعنی ٹھٹھا, بدین, تھر پارکر, عمر کوٹ, کراچی, حیدرآباد, ان سب ایریاز کو مینشن کیا گیا. سردار سرفراز صاحب, ہم نے دیکھا گزشتہ برس جو حالات رہے شہر قائد کے, خاص طور پر بارش کے بعد اربن فلڈنگ ہوئی, اس دفعہ محکمہ موسمیات نے آپ بتا رہے ہیں کہ الرٹس جاری کی رہے, 31 اگست کو ہی بتا دیا گیا تھا. تو حکومت کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن رہی, کس طرح کی کوارڈینیشن تھی؟ کیونکہ ابھی بھی پانی کی نکاسی کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ کافی ہیں, انتظامیہ تو نظر نہیں آ رہی. ہاں جی بالکل, خیر ہمارا انٹریکشن تو بہت ماشاءاللہ ایک طرح سے ہے, فرم انٹریکشن ہے. خود ڈی جی پی ڈی ایم اے جو ہیں وہ ہر وقت تھوڑی دیر بعد مجھ سے مطلب آن لائن ہوتے ہیں, اور جو ہم سچویشن ان کو بتاتے رہتے ہیں. کوارڈینیشن تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے,
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں اگر 50-60 ملی میٹر بارش تھوڑے سے وقت میں اگر آدھے گھنٹے میں پڑ جائے تو خاص کر جو نشیبی علاقے ہیں ان میں پانی کافی جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو نکلنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک ہیوی اسپیل ہوا کل آفٹر نون میں ہوا تھا گزشتہ کل, پھر رات میں ہیوی اسپیل ہوا اور پھر آج دن میں ایک آدھ جگہ میں ہیوی ہوئی, باقی تو ماڈریٹ بارش ہوئی ہے, لائٹ ٹو ماڈریٹ ہوئی ہے, باقی کہیں 5 ملی میٹر, کہیں 6, کہیں 8, کہیں اس طرح سے. صرف گلشن حدید جو ایسٹرن سائڈ ہے کراچی کی وہاں پر 60 ملی میٹر رپورٹ ہوئی ہے آج کے دن میں. تو اس میں جو گیپس آئے ہیں بیچ میں اس میں اچھی بات ہوئی کہ پانی بیشتر جگہوں سے کوئی بہت زیادہ میرے خیال میں کھڑا نہیں ہوا. ویسے تو لو لائنگ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی جگہ پہ تو کھڑا رہتا ہے پانی, لیکن ساتھ ساتھ اس کی ڈرین آؤٹ ہوتا رہا. ٹھیک ہے سرفراز صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ ماہر موسمیات کراچی سے ہمارے ساتھ تھے اور براہ راست آگاہ کر رہے تھے کراچی کی صورتحال بارش سے پہلے اور بارش کے بعد. بارش سے پہلے بھی الرٹ جاری کیا گیا اور بارش کے بعد اب جو پیشگوئی ہے کل صبح تک کی پیشگوئی ہے کہ بارش ہوگی, لائٹ ٹو ماڈریٹ رین کراچی شہر میں اور اندرون سندھ میں ساحلی پٹی پر بارش ہوگی. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ نے نارتھ کراچی کا دورہ کیا اور خیمسری برووی گوٹ میں خستہ حال سکول کا معائنہ کیا. انہوں نے کہا کہ بارش کی وجہ سے گٹر کا پانی سکول اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے. سکول میں 200 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سرکار کی عدم توجہ سے سکول نشہ کرنے والوں کی آماج کا بن گیا ہے. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ حکومت نے کاروبار کے بعد سندھ کی تعلیم پر وار کیا ہے. ناظرین, ملک میں تعمیرات اور اس سے وابستہ شعبوں کی ترقی اور شہریوں کی سستے اور معیاری گھروں کی فراہمی کے لیے پاک چین دوستی سینٹر اسلام آباد میں 3 روزہ ایکسپو جاری ہے. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار. اسلام آباد میں جاری 3 روزہ ایکسپو میں بلڈرز, ڈیولپرز اور تعمیراتی شعبے کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ بینکوں, سولر اور الیکٹرانکس سمیت اس شعبے سے وابستہ دیگر مصنوعات کے اسٹال لگائے گئے ہیں. Pakistan is very friendly and brother country to Azerbaijan. It is my first time that I am visiting such a nice place, such a organized event that shows and explains what potential of Pakistan has in the infrastructure, which is the important part of economy. Mainly real estate industry کے ساتھ جو allied sectors ہیں ان کو یہاں پہ ہم نے پروموٹ کیا ہے, لیکن یہ وہ انڈسٹری ہے جو کبھی بھی ایز اے انڈسٹری ریکگنائز نہیں کی گئی. اس حکومت نے آ کے وہ چیز چینج کی ہے اور یہ ایسا سیکٹر ہے جو سیکنڈ ہائیسٹ سورس آف انکم ہے پاکستان میں. ہر ایک بندہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سیکٹر سے اٹیچ ہے. ملک میں تعمیراتی سرگرمیوں کے فروغ سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کی یہ کہ اس کو ایک انڈسٹری بنا دیا ہے, ہم ان کا بڑا شکر گزار ہیں. اس میں جاب کریشن بہت ہے اور اس میں ویلتھ کریشن بھی بہت ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بوم کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے جو جتنے بھی کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہے سب میں بوم آتا ہے. جتنی کنسٹرکشنز ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ بھی کافی لوگوں کو جو ہے ملے گی. ابھی مین چیز آ رہی ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز کی طرف. اگر 4 کنال کے اوپر ایک پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کے اوپر اگر 10 سٹوریز بھی ہیں یا 5 سٹوریز بھی ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کم سے کم بھی 200+ فیملیز رہ سکتی ہیں. تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی سمیت دیگر کئی امراض دی گئی ہیں جس سے یہ شعبہ تیزی سے فروغ پا رہا ہے. یہ پرائم منسٹر لون اسکیم جو ہے یہ لو کاسٹ پہ لوگوں کو جو ہے وہ ہوم فائنینس کیا جاتا ہے. ہم ان لوگوں کو گھر فائنانس کرتے ہیں جن کے پاس ابھی اپنے رہائش کے لیے کوئی یونٹ نہیں ہے. اس شعبے میں جیسے ہی بینیفٹس کا اعلان ہوا ہے تو ایک اچھی پبلک کے ریشو نے موو کیا ہے بینکس کی طرف. کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور لوگ اپلیکیشن دے رہے ہیں اس میں, کیونکہ یہ ایک اپنے نوعیت کا ایک یونیک پروگرام ہے. تعمیراتی شعبے کی ترقی سے جہاں معاشی سرگرمیوں کو فروغ مل رہا ہے تو دوسری طرف ہر شہری کو چھت کی فراہمی سے فلاحی ریاست کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا. رانا افتخار احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین, راولپنڈی اسلام آباد میں نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے آذان مغرب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وطن کی مٹی گواہ رہنا یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے پاک فوج کے تعلقات عامہ نے ایک نیا پرومو جاری کیا ہے۔ اپنے دل کی ہر دھڑکن کا ہے نام پاکستان۔ اس دنیا میں ہم سب کی پہچان پاکستان۔ تم نے حفاظت کی معصوم بچوں کی مسکراہٹ کی۔ ہم گواہ ہیں تم نے حفاظت کی آزاد فضاؤں میں لہراتے ہوئے پرچم کی۔ جب بھی مشکل وقت آیا ارض پاک کو اپنی سانسیں بخش دی۔ تم نے حفاظت کی پاک وطن پاکستان کی۔ ہمیں تم پہ ناز ہے، تم نے اپنا خون بہا کر اس مٹی کی لاج رکھی ہے۔ تم سرحد سینہ تان کر خطروں کے آگے صرف اس لیے ڈٹ گئے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ یوم دفاع و شہداء پاکستان 2021 کے موقع پر آئیے ہم سب مل کر اپنا فرض ادا کریں۔ اپنے علاقے میں موجود شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کریں۔ یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے ISPR نے ملی نغمہ جاری کر دیا ہے۔ ملی نغمہ افواج اور قوم کے اس عزم کا عکاس ہے کہ وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ مادر وطن شاہد ہے کہ پیر و جوان نے نسل در نسل اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ فنکاروں کی نسل در نسل وطن سے محبت بھی اس ملی نغمے میں بھرپور عیاں ہے۔
ये जो खुशबू किसी एक वादे की है, इसके विरसे का हम इस्तेआरा बने। हर तरफ फैलती बेअमारात में वो जो मंजिल निशान, वो सितारा बने। अर्ज की हो वो सरहद के ईमान की, अर्ज की हो वो सरहद के ईमान की, उस पे पड़ने न दे दुश्मनों के कदम। जो भी सरहद हो उसके मुहाफिज है हम, मिलके बांटेंगे सब वो खुशी हो के गम, खुशी हो के गम, खुशी हो के गम। एक रस्ते पे हो सब ये तीरो जवां, अज़्म हो बेलचक हौसले। पाक बहरिया ने यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर जारी होने वाले खुसूसी नगमे दिल खुश हुआ का प्रोमो जारी कर दिया है। पाक बहरिया के इस नगमे में वतन के जानिसारों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, लिबास ये दिलरुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ, हाँ तू मेरी हर दुआ। और नाज़रीन, पाक फ़ज़ाइया ने सितंबर 1965 की जंग की मुनासबत से पाक फ़ज़ाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म की 5वें केस जारी कर दी है। दस्तावेजी फिल्म में 4 सितंबर 1965 के दिन फ़ज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। वतीन हज़रात, 31 अगस्त 1965 से 3 सितंबर 1965 तक का जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जंग शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तान एयरफोर्स, जो कि तादाद में पाक फ़ज़ाइया से कहीं बड़ी थी, उसका मुकाबला करने के लिए पाक फ़ज़ाइया के पास बेहतर तरबियत और जज्बा वाहिद हथियार था। कमांडर इन चीफ नूर खान को न सिर्फ उनकी जहानत के लिए बल्कि तेज़ फैसला साजी और शानदार इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से इंतहाई एहतराम से देखा जाता। नाज़रीन, 4 सितंबर 1965 जंग के चौथे दिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा इंदिरा गांधी ने अपनी धमकियों से जंग की जो चिंगारियां सुलगाई थीं, उन शोलों को उसी दिन जोड़ियां सेक्टर में सेकंड लेफ्टिनेंट शबीर शरीफ सितारा जुरत उनके ज़ेरे कमान बहादुर सिपाहियों ने अपने लहू से बुझाया। मज़ीद तफसील बताएंगे आसिम रिजवान अपनी इस रिपोर्ट में। ने 4 सितंबर के दिन वाज़े अल्फाज में कहा कि भारत जारहियत का मुर्तकिब हुआ है। चीन पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की मुकम्मल हमायत करता है। चीन के अखबार पीपल्स डेली ने लिखा कि भारतीय फौजों की जबरी मुदाखलत पर पाक फौज ने जा रहे फौजों को कंट्रोल लाइन से पीछे धकेल दिया। इस दिन जनरल हेडक्वार्टर्स ने तमाम फॉर्मेशंस को भारत के खिलाफ दिफाई इकदाम लेने का हुक्म दिया। शानदार अस्करी रवायात के मुताबिक कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान ने अगले मोर्चों का दौरा किया। 4 सितंबर को ही नीलकूद समुद्री हदूद की वसतों की अमीन पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल फजल रहमान खान ने तमाम यूनिटों को समुद्री हदूद में दिफाई पोजीशंस इख्तियार करने का हुक्म सादिर किया। भारतीय बहरिया की नकलो हरकत पर नजर रखने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, INS मैसूर और INS दिल्ली से लाक खतरात का सद्देबाब PNS गाजी की जिम्मेदारी था। जमीनी महाज पर 6 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक प्लाटून सेकंड लेफ्टिनेंट शबीर शरीफ की कमान में रूड़ी में मजबूत भारतीय मोर्चे पर हमलावर हुई। शदीद लड़ाई में बहुत से जवान शहीद हुए। कमांडिंग अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट शबीर शरीफ ने निहायत दिलेरी से अपनी जेरे कमान सिपाह को दुश्मन के नरगे से निकाला और दोबारा तंजीम के बाद
भरपूर हमला किया। ये बहादुर अफसर दुश्मन की गिरफ्त तोड़कर अपने 6 शोहदा के जस्ते खाकी और 15 जख्मियों को निकालने में कामयाब रहा। सेकंड लेफ्टिनेंट शब्बीर शरीफ के तीसरे बर्क रफ्तार और भरपूर हमले की ताब न लाते हुए दुश्मन अटरली गन छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हुआ। नौजवान अफसर की बेमिसाल क़ियादत, बहादुरी और जंगी सलाहियत के एतराफ में उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 4 सितंबर के ही दिन फिजाई महाज पर पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया की दर अंदाजे की कोशिश नाकाम बना दी और दुश्मन फिजाइया के भागते 40 तैयारों का दूर तक पीछा किया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और फ़िज़ाई मार्के के बाद बात करेंगे कुछ ज़मीनी मार्के की। 65 की जंग में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले एक ऐसे हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिससे वाघा सेक्टर में BRB के उस पार भारतीय मेजर जनरल निरंजन प्रसाद से फौजी जीप छीनने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे। शेराज दुरानी की रिपोर्ट देखिए। 65 की जंग में पाक फौज के जवानों ने दुश्मन की तमाम चालबाजियों, मक्कारियों और बुज़दिलाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाते हुए धरती माँ का कामयाब दिफा किया। कौम के बहादुर बेटों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए वो अजीम दास्तानें रकम की जिनकी मिसालें रहती दुनिया तक पेश की जाती रहेंगी। मुल्तान के नवाही कस्बे बस्ती मलूक के रिहायशी रिसालदार फरमान भी उन जवानों में से एक हैं जिन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम करके अपना नाम अर्ज़े पाक के बहादुर बेटों में शामिल किया। गाजी रिसालदार फरमान ने 8 सितंबर 1965 को 18 बलोच रेजिमेंट के स्क्वाड का मुतहर्रिक हिस्सा होते हुए BRB के उस पार दुश्मन फौज की 15वीं डिवीजन के GOC मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की न सिर्फ पेशकदमी को कामयाबी से रोका बल्कि उसकी जीप भी छीन ली। ये जीप भारतीय मज़मूम मकासद की नाकामी की मुंह बोलती तस्वीर का मंजर पेश कर रही है। अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाए, लड़ने के लिए बम बांध के फेंक दो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। कौम सलाम पेश करती है गाजी रिसालदार फरमान की जुर्रत को, शोहदा के जज्बे को, उनके ख़ानदानों के सब्र हिम्मत को। सलाम पेश करती है शहीदों और गाजियों से जुड़े हर रिश्ते को। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम न्यासी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत के ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों की हक खुद इरादत के लिए तारीखी और बेलोस जदोजहद पर सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरदार अब्दुल कयूम न्याजी को कश्मीरी आवाम के साथ फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने सरदार अब्दुल कयूम न्याजी को आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी और कश्मीर की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में सलामती और तरक्की के लिए फ़ौज की शराकत को सराहा। दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग सियाचिन ग्लेशियर पर 30,000 फुट की बुलंदी पर वतन अजीज़ का दिफा करते हुए कैप्टन मोहम्मद आसिफ तुफैल ने अक्टूबर 2028 में जामे शहादत नोश किया। शहीद कैप्टन के भाई राशिद तुफैल का कहना है कि उन्हें अपने भाई की इस अजीम शहादत पर फख्र है। तफसील जानते हैं रहीम यार खान से। बिलाल हबीब की इस रिपोर्ट में। दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग सियाचिन ग्लेशियर पर 30,000 फुट की बुलंदी पर वतन अजीज का दिफा करते हुए कैप्टन मोहम्मद आसिफ तुफैल ने अक्टूबर 2008 में जामे शहादत नोश किया। शहीद कैप्टन के भाई राशिद तुफैल का कहना है कि उन्हें अपने इस भाई की अजीम शहादत पर फख्र है। जुमे का दिन था जब इंडियन आर्मी फोर्सेस के साथ क्रॉस फायरिंग हुई है, तो जिसके नतीजे में इन्होंने इंडियन आर्मी के 5 ऑफिसर्स और सिपाहियों समेत उन्हें जहन्नुम हासिल किया और इन्होंने अपने मुल्क का दिफा करते हुए वहाँ पे इन्होंने जामे शहादत नोश किया। वतन की मोहब्बत में सरशार शहीद कैप्टन की फैमिली के बच्चे भी बड़े होकर पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करना चाहते हैं। तायाजान कैप्टन मोहम्मद आसिफ तुफैल शहीद की शहादत पर बहुत फख्र है। मैं भी बड़े होकर पढ़ लिख कर आर्मी में जाना चाहती हूँ। शहीद कैप्टन आसिफ तुफैल को इस अजीम कुर्बानी और बहादुरी पर तमग़े बसालत से नवाजा गया। बिलाल हबीब, PTV न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर बावकार मुल्क की हैसियत से सामने आया है। नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जब इक़्तिदार मिला तो मुल्क की मईशत तबाहाल और ख़जाना खाली था। ऐसे में वज़ीर आज़म ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके मईशत को मुस्तहकम किया। उन्होंने कहा कि अवाम अपोजिशन के बयानी को मुस्तरद कर चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अपोजिशन जमातों का मौजूदा इल्हाक सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों का दोबारा लूट मार करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा।
वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि IT इंडस्ट्री में फ्रीलांसर्स का अहम तरीन किरदार है। इन्होंने गुज़िश्ता साल $396 मिलियन की बरामदी तरसीलात हासिल की हैं। आइंदा 3 बरसों में फ्रीलांसर्स के लिए IT एक्सपोर्ट की मद में $3 अरब का हदफ रखा है। इस्लामाबाद में फ्रीलांसर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद वजारत IT की जानिब से तैयार करदा फ्रीलांसर्स पॉलिसी ड्राफ्ट की तैयारी में मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुशावरत और तजावीज़ के हुसूल के बाद इसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करना है। वज़ीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली जरदाज गुल ने कहा है कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत का विजन और अव्वलीन तरजीह है। यूनियन काउंसिल नंबर 3 डेरा गाजी खान में सुई गैस की फराहमी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम से जो वादे किए थे इनकी तकमील के लिए कोशां हैं। गुज़श्ता अदवार में जानबूझकर पसमानदा और वसाइल से महरूम रखे गए इलाकों में मसावी सहूलियात की फराहमी का वक्त आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारों पर नहीं बल्कि अमली कामों पर यकीन रखती है। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि अवाम 2023 के इंतखाब में भी शिकस्त खुर्दा रहनुमाओं को 2018 की तरह मुस्तरद करेंगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हमारे शोहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर वतन का दिफा किया है। आज हमें यह अहद करना है कि वतन की हुर्मत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का पाक फौज के खिलाफ बयान निहायत अफसोसनाक है। वो अपनी करप्शन दूसरों पर डालने के आदी हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना के सियासी करियर में करप्शन के अलावा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि मौलवी फजलुर रहमान साहब ने वो दिन चुने जब पूरी कौम अपने शोहदा की सताइश करती है, उस पर फख्र करती है, अपने बच्चों को सोने से पहले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाती है। उस टाइम मौलवी फजलुर रहमान ने मीडिया पे खड़े होके अपनी अफवाज, जो कि बहादुर हैं, जिनके खून से सींचा हुआ है पाकिस्तान का एक एक इंच, उनके खिलाफ बातें की। पूरी कौम अपनी एयरफोर्स और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है और सितंबर के दिनों में ये हम सबका फर्ज है सियासत से बालातर होके, कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, कारोबार हो, कि हम अपने उन शोहदा के घरों पर हाजिरी दें, उनके वालिदैन को बताएं कि आपके बेटों का खून जो है वो हमारे ऊपर कर्ज है। और नाज़रीन, खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आवाम से बराह रास्त राब्ता। ऐवान वज़ीर आला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ज़ाती तौर पर लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल के हल के लिए फ़ौरी अहकामात भी जारी किए। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात बता रही हैं सिद्रा आसिम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अवाम की मुश्किलात सुनने के लिए यहाँ खुली कचहरी का अहतमाम किया है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि जनूबी पंजाब से, रिमोट एरिया से लोग यहाँ पर आए हैं। वो ना सिर्फ उनके मसाइल सुन रहे हैं बल्कि मुकम्मल यकीन दहानी भी करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर आला को अपने मसाइल बताए। वज़ीर आला ने उनसे क्या कहा, क्या यकीन दहानी कराई, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईवान वज़ीर आला में खुली कचहरी का इत्तेमाम किया गया है। वज़ीर आला ने आपके मसाइल सुने, क्या कहेंगे इस हवाले से? वज़ीर आला एक एक से मिला है और इन एक एक लोगों का मसला मसाइल सुन रहा है और सुन लिया। दूसरा, हमें ये खुशी है कि शराकी सूबा मंजूर हुआ। वज़ीर ने आपके मसाइल सुने, क्या कहेंगे इस हवाले से? वज़ीर आला इंशाअल्लाह सबके काम करेंगे। जहाँ जो लोग आए हुए हैं भी ये इसलिए आया हुए हैं, इनको उम्मीद है। इससे पहले कभी यहाँ इतने लोग आए थे, लोगों के काम हो रहे हैं। कहीं दूर खर्चा करके हम आए हैं और ट्रेवल एरिया के अंदर हम जो ना खर्चा करके आए हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि अवाम वज़ीर आला पंजाब को अपने दरमियान पाकर कितनी खुश है और कितनी पुरुमीद है कि उनके मसाइल हल होंगे। जी इंशाअल्लाह उन्होंने हमारी बात भी सुनी और इंशाअल्लाह हमारा हल भी निकालेंगे और पहले भी काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बात सुनी सी इंशाअल्लाह काम ही हो सी। अल्लाह मुतमन्ना इंशाअल्लाह सारा काम हो सी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला आप देख सकते हैं कि अवाम के कई घंटों से मसाइल सुन रहे हैं और उनके मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका सेक्रेटरीज आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं ताकि अवाम के मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मंशूर था कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल किए जाएंगे, तो आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ये वादा भी पूरा कर दिया।
सिद्रा आसिम रिपोर्ट कर रही थी लाहौर से वाने वज़ीर आला से, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। आवाम के मसाइल बराह रास्त सुने, बराह रास्त रब्ता किया आवाम से और उनके मसाइल के हल के लिए वहीं पर फौरी अहकामात भी जारी किए। इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।